स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज से पहले लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसकी रचना विलियम सी डगलस ने की है, इस लेसन के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस लेसन में जो पहला इम्पोर्टेंट पैरा है वो देखते हैं। पैरा है दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. तो एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये जो पैरा दिया गया है उसकी आउटलाइन लिखेंगे। दे वर डॉट डॉट कर दे फॉल फेल। इसके बाद में हमें पहली हेडिंग रेफरेंस लिखनी है। रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। और इसके बाद में दूसरा जो हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। द राइटर केम टू इंडिया टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन एंड रिफ्यूजीज इन 1950। इसके बाद में तीसरा जो हेडिंग है एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे When the refugees left their homes in Pakistan, they became very poor. Their long journey to India made them highly poorer because they had to spend money on their food, etc. They had left all their property in Pakistan. The only property they could carry with them was some food and some very essential articles. The food did not last long. Hunger made them very weak, so many of them fell on the way and died of hunger and वीकनेस। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरा है इसे और देखते हैं। तो ध्यान दें जो इम्पोर्टेंट पैरा है उस पर। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। शी हैड ए lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. तो सबसे पहले हमें इस पैरा की आउटलाइन लिखनी है। द मोस्ट डॉट डॉट करते हुए एनी हर्ट, पहला हेडिंग रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। और दूसरा हेडिंग कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द राइटर केम टू इंडिया टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ Indian and refugees in 1950। इसके बाद में तीसरा हेडिंग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो क्या लिखना है ध्यान दें एक्सप्लेनेशन में। There was a crowd of refugee children selling baskets
what the author was impressed by a little girl of 9 years who stood just in front of him. She looked beautiful. Her attempts were quite strong. As a seller of her basket was pretty to look at. It had a handle too. She wanted to sell the basket for 1.5 rupees. It was about 30 cents in American currency. She made powerful appeals to him so that he might buy her basket. She looked very poor. There were tears in her eyes. The author's heart was moved by the pitiable requests of the girl. इसके बाद में इस लेसन से जो तीसरा इम्पोर्टेंट पैरा है उसे और देखते हैं। तो ध्यान दें इस पैरा पर। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. तो सबसे पहले हमें इसकी आउटलाइन लिखनी है। दिस चाइल्ड डॉट डॉट करते हुए बैक टू मी। पहला हेडिंग रेफरेंस। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas। और कॉन्टेस्ट में लिखेंगे The writer came to India to know about the condition of Indian and refugees in 1950। और इसके बाद में जो तीसरा हेडिंग है एक्सप्लेनेशन, इसको देखें, ध्यान दें। द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट शी वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years. हर क्लॉथ्स वर worn out. She was very poor, but she did not like money in charity. She was not a beggar. She wanted money on selling her basket to the author. She lifted her face with pride and returned the money to the author. At that moment she behaved like a proud and graceful lady, though she was a poor starving girl of 9 only। एक और चौथा इम्पोर्टेंट पैरा इसमें देखते हैं। तो पहले पैरा देखेंगे। पैरा है द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम इस पैरा की आउटलाइन देखेंगे। द पीपुल डॉट डॉट करके फॉर इंडिपेंडेंस। तो पहला हेडिंग इस पैरा की एक्सप्रेशन करते हुए रेफरेंस लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाई विलियम सी डगलस। और दूसरा हेडिंग कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे द राइटर केम टू इंडिया टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन एंड रिफ्यूजीज इन 1950। तीसरा हेडिंग जो है एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ड्यूरिंग हिज विजिट द राइटर सॉ पीपुल लिविंग इन विलेजेस। ही आल्सो सॉ द एजुकेटेड एंड कल्चर्ड टॉप क्लास ऑफिसर्स।
he found that people of both these groups were full of self-respect. They knew how to behave decently and were good citizens. They loved freedom. The writer felt deep pride for these qualities of Indians. तो इस तरह से प्रोज के पहले लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसकी रचना विलियम सी डगलस ने की है, के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन हुए। थैंक्स। इन्हें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, समझेंगे और याद करेंगे।